I'm Dr. Alok Agrawal, taking your course Fluid Mechanics, having course code ME404. So, in this class, we will start the fluid properties section. So, in this, we will study mass density, we will study weight density, we will study specific volume, and we will go through specific gravity, and then we will solve some numerical related to these four properties. So, this is the part of our lecture 2. So, let us start with mass density. What is mass density? Whatever we called in solid density, we called here as mass density. It is defined as the ratio of mass of fluid to its volume. Its symbol is rho. It is denoted by rho, and mathematically it can be written as mass upon volume. That is mass of fluid upon volume of fluid, m by v. So what will be its unit? Its unit will be kg per meter cube. Kg is the mass of unit of mass, and meter cube is the unit of volume. So we can say that kg per meter cube is the SI unit, and gram per centimeter cube is the CGS unit. In fluid mechanics, generally we will deal with water as our fluid. So we should know the density of the water. So the standard density of water is 1000 kg per meter cube, and when we talk about gram centimeter cube in CGS unit, we can say that it is 1 gram per centimeter cube. So it is mass density, mass of fluid upon volume of fluid. Next property is, okay, so the density of most of the gases is proportional to pressure. Means if we increase the pressure, the density will increase, and it is inversely proportional to temperature. What does it mean? कि अगर हम temperature बढ़ाएंगे, when we increase the temperature, the density will decrease. Means, see, what is density? It is depending upon mass upon volume. So mass, we know that it is a constant quantity. For a given substance, mass will remain constant. So ultimately, what is happening here? Density and volume are in relationship. So when we apply pressure, what will happen? वॉल्यूम विल डिक्रीज. वॉल्यूम कम होगा जब भी हम प्रेशर लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. तो वॉल्यूम कम होगा तो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कम हो रहा है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कम हो रहा है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी. सिमिलरली जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के वो एक्सपांड होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर वाली चीज बढ़ रही है तो डेंसिटी क्या होगी? कम. लिक्विड जो होता है उसको हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, पिछले वीडियो में भी देखा था. और एंड वेरिएशन ऑफ देयर डेंसिटी विद प्रेशर इज नेग्लिजिबल. प्रेशर के साथ उसकी डेंसिटी बहुत कम चेंज होती है, जो कि हम नेग्लिजिबल मानते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी इज वेट डेंसिटी. इस वेट डेंसिटी को हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं. ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी स्पेसिफिक वेट पूछ लेता है, तो हमको पता होना चाहिए दैट वेट डेंसिटी इज सेम एज स्पेसिफिक वेट. हाउ इट इज डिफाइंड? जैसे कि मास डेंसिटी को अपन मास अपॉन वॉल्यूम बोलते थे, वेट डेंसिटी को भी से वेट अपॉन वॉल्यूम. That is ratio between the weight of the fluid to its volume. Okay, mathematically we can say that W is equal to weight of fluid upon volume of fluid. Now what is weight? Weight is equal to mass into gravitational acceleration. So we'll break it into mass of fluid into acceleration due to gravity. And when we see that mass of fluid upon volume of fluid is already, we have learned mass density. So this weight density will be equal to mass density into gravitational acceleration. So this is very important relationship to solve various numerical problems. What is the unit of weight density? Weight upon volume in SI system, and dyne upon centimeter cube in CGS system. Now, what is the weight density of water? So, it can be calculated from here very easily. We have seen that mass density of water is 1000, and we know that G, the value of G is 9.81 meter per second square. So, when we multiply 1000 by 9.81, we will get 9810 Newton per meter cube as the weight density of the water. Next is specific volume. It is defined as the volume per unit mass of, means it is reciprocal of mass density. You can say volume upon mass, it is reciprocal of mass density. So its unit will be again reciprocal of mass density. There is a meter cube per kg. Next very important property is specific gravity. It is defined as the ratio of weight density of fluid to the weight density of standard. See, this is the ratio of two similar things. That is weight density of any unknown fluid by weight density of standard. And what is our standard fluid? In case of liquid, that is water. And we know that the weight density and density of water. Now see, we have written it mathematically like S, specific gravity is denoted by S. So it is weight density of
any liquid upon weight density of water. Now we have already seen that weight density is equal to mass density into gravitational acceleration. So weight density of liquid can be written as mass density of liquid into gravitational acceleration. Here also weight density of water can be written as mass density of water into gravitational acceleration. और जब ऊपर और नीचे दोनों जगह gravitational acceleration है, we can cancel it out. So what will remain? Specific gravity is equal to density of liquid upon density of water. So this both formula are equally correct. Again, its unit, it has no unit. इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी वेट डेंसिटी नीचे भी डिनोमिनेटर में भी वेट डेंसिटी, तो यूनिट विल नॉट बी देयर. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज, अगर मेरे को किसी भी फ्लूइड की एस की वैल्यू पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो मैं उस फ्लूइड की डेंसिटी कैसे निकाल लूंगा? इस फॉर्मूले में रख के, ये सेकंड वाले फॉर्मूले में रख के, कि यहाँ पे 0.9 रख दूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मुझे पता करना है और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, तो 1000 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल गेट 900 kg per meter cube as our density of liquid. हमको दो फ्लूइड की डेंसिटी बिल्कुल हमको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज वाटर जिसकी डेंसिटी 100 kg, वो सॉरी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, और दूसरा है मरकरी, क्योंकि हम मरकरी वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में ड्यूरिंग द और एक्सपेरिमेंटेशन. तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 13.6 होती है, तो उसकी डेंसिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? 13600 kg पर मीटर क्यूब आफ्टर मल्टीप्लाइंग 13.6 विथ 1000. These are the important points. Now see, we will do numerical related to this four properties. So what is written here? Calculate the weight density, sorry specific weight, इसको हम weight density भी बोलते हैं, density and specific gravity of 1 liter of liquid which weight 7 Newton. तो हमको तीन चीजें निकालना है. क्या दिया हुआ है? उस फ्लूइड का, उस लिक्विड का वेट दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है. 1 लीटर क्या दिया हुआ है? उसका वॉल्यूम दिया हुआ है. तो सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 लीटर. इसको हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो भी हमने फॉर्मूला देखा वो मीटर क्यूब में. तो व्हेन वी कन्वर्ट 1 लीटर इनटू मीटर क्यूब, दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10⁻⁻3. तो ये आपको ध्यान में रखना. वेट 7 न्यूटन दिया हुआ है. अब हमसे क्या पूछा है? स्पेसिफिक वेट पूछा है. तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट अपॉन वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. तो वेट 7 है, वॉल्यूम 10⁻³ है, तो 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा स्पेसिफिक वेट हो गया. एकदम सिंपल. सेकेंड डेंसिटी हमको पता है, वेट डेंसिटी हमको पता है, तो अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमको मास डेंसिटी मिल जाएगी, बिकॉज वी नो दैट वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. तो 7000 से हमने जी को डिवाइड कर दिया, तो 713.5 kg पर मीटर क्यूब हमको मास डेंसिटी मिल गई. नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो 713.5 kg पर मीटर क्यूब हमको डेंसिटी मिली है, उसको वाटर की डेंसिटी 1000 से डिवाइड कर देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी. एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन जो फॉर्मूला हमने देखा था उसका यहाँ पे एप्लीकेशन भी हमको मिल गया कि इसको कैसे यूज करना है. एक प्रॉब्लम और करते हैं. कैलकुलेट द डेंसिटी, वेट, स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7. देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमको वेट दिया था फ्लूइड का, लिक्विड का, और यहाँ पे हमको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है. तो अगेन हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्या? वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, तो वो आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, और वी कैन राइट इट 0.001 मीटर क्यूब. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन 0.7. अब हमको डेंसिटी पूछा है, तो हमको पता है डेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है. स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ नॉन लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो सिंपल सा हम उसी फॉर्मूले में रख के स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको डेंसिटी ऑफ पेट्रोल मिल जाएगा, जो आ रही है 7000 kg पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट स्पेसिफिक वेट, हमको पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है? रो इंटू जी. अगेन जो डेंसिटी हमको मिली उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको मिल जाएगा स्पेसिफिक वेट, जिसको हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. और आखिरी में हमको वेट बोल रहा है, तो स्पेसिफिक वेट हमको पता है वेट अपॉन वॉल्यूम होता है. तो वेट क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम 0.001 है, वेट है, स्पेसिफिक वेट है हमारा 7000, सॉरी स्पेसिफिक वेट है हमारा 6867, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वेट ऑफ फ्लूइड मिल जाएगा 6.867 न्यूटन. यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, हमको हर एक चीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व करने से पहले. जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते थे, लेकिन हमारे फॉर्मूले में हर जगह क्या है? मीटर क्यूब. तो इसको हमने कन्वर्ट किया और लिखा इन मीटर क्यूब. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज विस्कोसिटी.